Today we are learn about pair of linear equation in two variables, class 10. Equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 is called pair of linear equation in two variables. Here x and y are variables, a and b are constant. अब इसके तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व. पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड. लेकिन सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस है. मतलब सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन. से मान लीजिए, लेट टू इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0, and second equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Case first, if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 means ratio of coefficient of x not equal to ratio of coefficient of y, then solution will be consistent. Solution consistent. Line intersecting. Intersect. Line intersect. Unique solution. If a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, then solution will be consistent and unique solution and line will be intersect. दोनों लाइन कट करेंगी और उनका सोल्यूशन एक यूनिक सोल्यूशन होगा. मीन्स दिस वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बी यूनिक. ओके. केस टू, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, if the ratio of coefficient of x is equal to the ratio of coefficient of y but not equal to c1 upon c2, then solution inconsistent, line will be parallel. Parallel means no solution. No solution. Case third, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. If a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, then solution consistent, many solution, coincidence line, identical line. So there are three cases. Case first, if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, then solution will be consistent, line will be intersecting, and there will be unique solution. Case 2, if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, solution will be inconsistent, line will be parallel, and no solution. Case third, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, solution consistent, many solution, and line will be identical. Now to say, take one example. अब एक एग्जाम्पल हम समझते हैं. चलिए एग्जाम्पल से x
प्लस वाई x minus y equal to 3 and 2x plus 3y is equal to 6. अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन. हियर a1 upon a2, a1 upon a2 मतलब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1 upon 2, b1 upon b2 is equal to minus 1 upon 3, c1 upon c2 is equal to 3 upon 6 मतलब 1 upon 2. Here a1 upon a2 is equal to 1 upon 2 and b1 upon b2 minus 1 upon 3. This is clear from these two conditions. a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. Okay? तो इसमें हमारा लाइन intersecting line, solution will be consistence. अगर कंसिस्टेंस तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे. पहले हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक, this is the x-axis, this is the y-axis, this is the positive x-axis, this is the positive y-axis, this is the negative x-axis, this is the negative y-axis. अब दोनों लाइन हम लोग ग्राफ पे ड्रा करेंगे. पहली लाइन हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 3. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है. पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3. मतलब ये लाइन जो है x एक्सिस को ओरिजिन से 3 डिस्टेंस करेगा, 1 2 3, 3,0 करेगा. अब नाउ चेक वेयर दिस लाइन कट y एक्सिस, पुट x इज इक्वल टू 0. तो माइनस मतलब y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3. जो लाइन है y एक्सिस को निगेटिव एक्सिस पर करेगा, -1 -2 -3, ईयर कट 0, -3. अब सेकेंड लाइन, दिस इज हमारी फर्स्ट लाइन. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब सेकेंड लाइन चेक करते हैं, ग्राफ पे ड्रा करते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, पुट y इक्वल टू 0. तो 2x इज इक्वल टू 6 मतलब x इज इक्वल टू 3. ये लाइन x एक्सिस को ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पर करेगा, मतलब यहीं पर करेगा, यहाँ पर सेकेंड लाइन. अब सेकंड पुट x इज इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2. अब ये लाइन y एक्सिस को, पॉजिटिव y एक्सिस को ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर करेगा, 1 2, 0, 2. अब दोनों का मैच कर दीजिए. हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. तो दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. मतलब x इक्वल टू 3
and y equal to 0 is the solution of equation. दोनों लाइन एक्स एक्सिस, दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे वही उनका सोल्यूशन हो जाएगा. दोनों लाइन कहाँ कट कर रहे हैं? 3, 0 कट कर रहे हैं. दैट इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन. ये हुआ ग्राफिकल मेथड. दिस इज द ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफ ड्रा करने के लिए, ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए पहले हम दोनों ग्राफ पेपर में दोनों लाइन ड्रा करेंगे. दोनों लाइन जहाँ पे दूसरे कट करेंगी वहीं आपका हो जाएगा सोल्यूशन. ग्राफ ड्रा करना बहुत ही आसान है. पहले चेक करिए कि लाइन एक्स एक्स उसका कट कर रहा है, उसके लिए आप वाई को 0 पर कर दीजिए. एक्स फाइंड कर लीजिए, एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर ड्रा कर दीजिए. उसके बाद वाई पे चेक करने के लिए एक्स को 0 पर कर दीजिए और वाई फाइंड कर लीजिए. ठीक, फिर दोनों क्रॉस अब ज्वाइन कर दीजिए. देखो ग्राफिकल मेथड. हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड मेथड. इसमें से किसी भी इक्वेशन से आप एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, चाहे किसी भी इक्वेशन से. आप मान लीजिए एक्स की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो हम लोग थोड़ा बच्चों को समझने के लिए थोड़ा ये इक्वेशन चूज करते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 6 माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 3y अपॉन 2. पुट x इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो 6 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस y इज इक्वल टू 3. तो 6 माइनस 3y माइनस 2y होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 3. 6 माइनस 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 5y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0. y की वैल्यू को मिल गई. अब y x फाइंड करने के लिए आप यहाँ y वैल्यू पुट कर दीजिए. तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 6 अपॉन 2. तो x इज इक्वल टू 3. तो सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, ये x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0. यह होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया. हम लोग अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. अब जिसको हमको करना है एलिमिनेट, उसके कोफिशिएंट को हम लोग को करेंगे सेम. अगर मान लिया आपको y एलिमिनेट करना है तो y कोफिशिएंट आप सेम करिए. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y कोफिशिएंट 1 है, सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट आप 3 है. तो फर्स्ट में 3 से इंटू कर दीजिए, सेकेंड में 1 से इंटू कर दीजिए. तो हो गया 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. और सेकेंड इक्वेशन में आप 1 से कर दीजिए. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. अब दोनों इक्वेशन में y कोफिशिएंट सेम हो गए, एक में माइनस एक में प्लस 3 है, दोनों प्लस कर दीजिए. अगर साइन अपोजिट तो प्लस कर दीजिए, साइन सेम साइन है तो माइनस कर दीजिए. यहाँ प्लस कर दे रहे हैं हम लोग, प्लस 3y से कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 15. तो x इज इक्वल टू 3. अब पुट x इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए आप लोग. 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो y इज इक्वल टू 0. तो सोल्यूशन हमारा आ गया x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0. ये हमारा हो गया एलिमिनेशन मेथड. तो तीनों मेथड में आपको हमारे को चेक करना है
को दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर a1 अपान a2 कितना हो गया 1 अपान 2, b1 अपान b2 कितना हो गया 2 अपान 4 मतलब 1 अपान 2, c1 अपान c2 कितना हो गया 1 अपान 2, मतलब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 मतलब इक्वल टू 1 अपान 2। तो कंसिस्टेंस मेरी सोल्यूशन आइडेंटिकल लाइन, आइडेंटिकल लाइन मान लो यह है आइडेंटिकल लाइन, मान लो यह 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 8। तो यार a1 अपान a2 इज इक्वल टू 1 अपान 6, 1 अपान 3, b1 अपान b2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपान माइनस 9, 1 अपान 3, c1 अपान c2 इज इक्वल टू 5 बाई 8। यार आपका a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंस। तो पूरा सेट हो गया फिनिश। ओके चलिए आगे हम लोग आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लोज।